Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to class 8th. Today we are going to start our unit number 1, Network and Communication. In this chapter we will discuss the following contents: Introduction, a computer network, components of computer network, client and server. First of all, here I am going to start reading. Introduction. Computers are linked with each other to share resources and information. To connect computers, various devices are required for communication. Media are used to transport the data from one point to another point. Along all these, a few new technologies for communication will also be discussed in this unit. Number 1. A computer network. A collection of two or more computers that are linked together through communication medium in order to share computer resources and information is called computer network or simply network. It can be used for simple tasks like sharing a printer, scanner, software, games, etc. It allows a user to communicate with each other easily through electronic mail, chatting, video conferencing, etc. Components of a network. A computer network is composed of the following components: sending device, a device which sends any information in the form of data or instruction is called sending device. It is also called source or transmitter. Normally, computer is used as a sending device in data communication system. Receiving device, a device that can accept the transmitted data is called receiving device. It is also known as sink. The receiving device may be a computer, printer, plotter, etc. Number C. Communication device is a device that is used for communication among the computers and other devices is called communication device. One of the most popular and most widely used communication devices is modem. Modem is normally used for internet communication. Other examples of communication devices are network interface card, Bluetooth, Wi-Fi, hub, switch, etc. Number D. Transmission medium. A transmission medium is used for carrying communication signals from one place to another. The most common type of transmission media used with wired computer network are twisted pair cable, coaxial cable, fiber optics cable, etc., where satellite, microwave and infrared are commonly used for wireless computers network. Number 3. Client and server. A computer network is referred as to client or server if there is at least one centralized and powerful computer to which many computers are connected, and server the clients. In this network, server act as host and other computer access servers. Server provides services whereas client rely on server for these services. It means that these services are centralized. If server is turned off, its services will not be available on the computer. A server is typical more powerful computer than client. It has high processing speed, more memory and large disk device. Okay, introduction. Computers are linked to each other to share resources and information. To connect computer, various devices are required for communication. Media are used to transport the data from one point to another point. नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं? बेसिकली रिसोर्सेस शेयर के लिए, ठीक है। जब हमने डिफरेंट रिसोर्सेस को शेयर करना है, हमारे पास एक प्रिंटर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं। जब नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं तो वो प्रिंटर हमारे पास सारे कंप्यूटर्स के लिए यूज़फुल होता है। एक ही प्रिंटर को सारे कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। अब नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डिफरेंट डिवाइसेस चाहिए होती हैं और बेसिक चीज़ जो डेटा को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाए, ऐसा मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है नेटवर्क बनाने का कि हम रिसोर्स शेयरिंग कर सकें, फाइल शेयरिंग कर सकें, ठीक है। ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करे। कंप्यूटर नेटवर्क अलाउज शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रॉम्प्ट्स एंड डेटा फाइल एट्सेट्रा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्क। होता क्या है? अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर दैट आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू हब, थ्रू किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के, तो वो क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, सिंपली collection of computers and devices interconnected by communication channel। ठीक है, it facilitates the communication among users। you can see it is connected through internet। डायग्राम में आप देख सकते हैं थ्रू इंटरनेट सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो नेटवर्क क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट हो, किस लिए? फाइल शेयर करने के लिए, रिसोर्स शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब जो हमने कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करना है, इसको स्टैब्लिश करने के लिए हमें डेफिनेटली कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जो आप देख सकते हैं। सेंडिंग डिवाइस, जिससे डेटा सेंड करेंगे। रिसीविंग डिवाइस, जो दूसरी साइड से डेटा को रिसीव करेगा। कम्युनिकेशन डिवाइस, अब सेंडिंग और रिसीविंग के दरमियान जो उनको आपस में कनेक्ट करवाएगा। ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज़ आल्सो डिवाइस, सॉरी इट इज़ आल्सो चैनल। ठीक है, जैसे वायर्स होती हैं एटसेट्रा। Sending device, a device which is used to send information in form of data or instruction is called sending device। Sending device also called source or transmitter। अब सेंडिंग डिवाइस जिससे आप डेटा सेंड करते हो, ठीक है, ऐसी डिवाइस जिससे आप डेटा सेंड करते हो उसको आप सेंडिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, या जो डेटा सेंड करने के लिए यूज़ की जाती है उसको हम सेंडिंग डिवाइस कहते हैं। जैसे आपके पास टेलीफोन होता है, जैसे आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन होता है, जैसे आपके पास कंप्यूटर है। ठीक है, ये सारी कौन सी डिवाइसेस हैं? सेंडिंग डिवाइसेस है, जिनसे हम डेटा सेंड कर सकते हैं। सेंडिंग डिवाइस आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इसको हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं और सोर्स भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं दूसरी प्लेस पे। नेक्स्ट आपके पास कौन सी है? रिसीविंग डिवाइस। रिसीविंग की वर्ड से आपको पता है जहाँ से आप डेटा रिसीव करते हैं। अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट ट्रांसमिटेड डेटा इज कॉल्ड रिसीविंग डिवाइस, इट इज आल्सो कॉल्ड सिंक। ठीक है, ऐसी डिवाइस जो डेटा को रिसीव करने के लिए यूज़ की जाती है उसको हम रिसीविंग डिवाइस कहते हैं। जैसे अगर आपके पास सेम एग्जांपल यहाँ पे कंप्यूटर और टेलीफोन की है। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी ने कॉल किया, ठीक है, टेलीफोन से, लैंडलाइन से, आप अपने लैंडलाइन से कॉल पिक करते हो, तो बेसिकली आपका लैंडलाइन क्या हुआ? रिसीवर हुआ। ठीक है, जैसे ये आपका मोबाइल फ़ोन है, किसी ने आपको कॉल की, आपने कॉल रिसीव की, तो आपका टेलीफोन या आपका मोबाइल फ़ोन क्या है? वो रिसीवर है। इसी तरह कंप्यूटर, आपको किसी ने मेल किया, आप उसको मेल को रिसीव करते हो अपने कंप्यूटर के थ्रू, तो आपका कंप्यूटर क्या हुआ? रिसीवर हुआ। जो डिवाइस डेटा रिसीव करती है उसको हम रिसीवर, रिसीविंग डिवाइस बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स कंप्यूटर और टेलीफोन। ठीक है, ये टेलीफोन जो सेंड करने के लिए यूज़ होता है उसको सेंडर कहते हैं, जहाँ से कॉल रिसीव करते हैं उसको हम रिसीवर कहते हैं। हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस, अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमॉन्ग द कंप्यूटर एंड द अदर डिवाइसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर और दूसरी डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ की जाती है उसको हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। जैसे मोडेम है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, हब है, स्विचेस है। ठीक है, अब मोडेम घर में आपके राउटर लगा होता है, ठीक है, किसके लिए? इंटरनेट के लिए। ब्लूटूथ से आप फाइल शेयरिंग का काम करते हो। ठीक है, इट इज़ आल्सो कम्युनिकेशन डिवाइस। हब बेसिकली जब आपके पास एक लैब स्टैब्लिश की जाती है, ठीक है, लैब में जो कंप्यूटर एक सर्वर होता है, बाकी क्लाइंट्स होते हैं। अब क्लाइंट सारे जो होते हैं वो उनकी केबल्स वो हब में लगी होती हैं, और हब किससे कनेक्टेड होता है? सर्वर से। अब सर्वर सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर रहा होता है। करेक्ट? Okay, transmission medium. A medium that is used carrying signals from one place to another place is called transmission medium. As I mentioned in start कि हमें नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए ट्रांसमिशन मीडियम भी रिक्वायर्ड होता है। अब मीडियम क्या है? जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अब मीडियम क्या है?
वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे वायर्ड की एग्जांपल है, वायर्ड मीडिया है, इसमें ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। Here you can see twisted pair. Twisted pair cable is one of the most commonly used communication media for network cabling. Network बनाने के लिए हम ज़्यादा mostly because it is less expensive compared to coaxial and fiber. It consists of two separate lines, copper wires, you can see in the diagram, that covered by insulating material such as plastic are twisted together to form a cable. One of the wire is used to carry signals and other is used to ground reference. अब आप देख सकते हो दो हैं, एक को हम किस लिए यूज़ करते हैं, डेटा रिसीव करने के लिए, ठीक है, एज अ और कैरिंग सिग्नल के लिए, सिग्नल भेजने के लिए, ठीक है, और एक एज अ ग्राउंड रेफरेंस यूज़ की जाती है, और इट इज़ लेस एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडिया। नेक्स्ट हमारे पास है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल, इट इज मेड ऑफ टू वर्ड को एंड एक्सियल। कोएक्स भी इसे कहते हैं। ये क्या करती है, कैरी सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंज देन ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, उसके मुकाबले में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ सिंगल सॉलिड कॉपर वायर। अब सिंगल कॉपर वायर होती है जिसको हम इनर कंडक्टर कहते हैं। यूजुअली इनर कंडक्टर आगे 3 लेयर्स में क्या होती है, सराउंडेड होती है। एक को इंसुलेटेड मटेरियल कहते हैं जो इनर कंडक्टर को कवर करता है, दूसरा आउटर कंडक्टर सॉलिड मेटल फॉयल होती है, ठीक है, सिल्वर कलर की, यू कैन सी इन डायग्राम। तीसरा इंसुलेटेड मटेरियल जो सबको ऊपर से कवर करती है, इंसुलेट यानी उसको प्रोटेक्ट करती है, और ये यूज़ होती है वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। 10 मेप्स टू 200 mbps यूज़ होते हैं, इसमें इसकी स्पीड है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर्स बेसिकली धागे को कहते हैं। अब ये क्या है, फाइबर मीन्स ग्लास से बनी है। फाइबर ऑप्टिक केबल इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक्स एंड ट्रांसमिटेड सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब इसमें इट इज़ डिफर फ्रॉम बोथ प्रीवियस टू केबल्स। इसमें डेटा जो है वो लाइट के फॉर्म में जाता है। फाइबर ऑप्टिक कंसिस्ट ऑफ ट्यूब ऑफ ग्लासेस थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड एज पल्सेस ऑफ लाइट, ठीक है। अब पल्सेस की फॉर्म में इसमें डेटा जाता है। द कोर इज सराउंडेड बाय कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास कॉल्ड क्लेडिंग, और इसको एक कवर कर रहा होता है क्लेड, ठीक है। अब ये क्या है, मोर एक्सपेंसिव है कंपेयर टू ट्विस्टेड एंड कोएक्सियल। ये मोस्टली नेटवर्क स्टैब्लिश करने, अब इंटरनेट के लिए भी मोस्टली जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ की जाती है। Next, client and server. What is client? A client is a machine or program that requests for services through the web. Client क्या होता है, एक वो कंप्यूटर जो एक पावरफुल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब सर्वर इज अ मशीन और प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट। सर्वर इज मोर पावरफुल सेंट्रलाइज कंप्यूटर, ठीक है, जिसके साथ बाकी सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं, यानी क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं। अब सर्वर जो होता है वो सबको मैनेज कर रहा होता है जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। सर्वर को हम होस्ट भी कहते हैं, ठीक है। सर्वर एक्ट एज होस्ट एंड अदर कंप्यूटर क्लाइंट एक्सेस सर्वर, ठीक है। सर्वर प्रोवाइड सर्विसेज वेयर क्लाइंट रिलाई ऑन सर्वर फॉर द सर्विसेज, ठीक है। ये सब अब क्या होता है, लेट्स सर्वर अगर ऑफ हो जाता है, ठीक है, टर्न ऑफ करता है, तो बाकी कंप्यूटर्स जो उसकी रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वी कैन से दैट सर्वर इज सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर। ये जब टर्न ऑफ होता है तो इसकी जो सर्विस होती है वो अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। क्लाइंट कंप्यूटर कौन से होते हैं, वो सारे कंप्यूटर जो एक मोस्ट पावरफुल सेंट्रलाइज कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट। यू कैन सी इन द डायग्राम, ठीक है, इंटरनेट, सर्वर, क्लाइंट, ठीक है। अब ये
सर्वर क्या हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू ये कंप्यूटर इसको एक्सेस कर रहे हैं। जो हमारे पास नोड्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, उनको हम क्लाइंट्स कहते हैं। और क्लाइंट किस पे बेस करते हैं, वो सर्वर पे बेस करते हैं। अगर सर्वर ऑफ हो जाए तो क्या होता है, उसकी सर्विसेज स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है। ये अपनी मर्जी से इसको, बल्कि लेट्स इसकी रैम ज़्यादा होती है, ठीक है, प्रोसेसर अपनी मर्जी का लगाया जाता है ये वो। तो हाई कैपेसिटी कह सकते हैं, या मोर पावरफुल, ये एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है जो अपने साथ कनेक्टेड सारे कंप्यूटर्स को मैनेज कर रहा होता है। और जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं सर्वर के साथ, उसको क्या कहते हैं, उनको क्लाइंट कहते हैं। और सर्वर को हम होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं, सर्वर को हम मास्टर कंप्यूटर भी कहते हैं। होपफुली इट इज क्लियर, ठीक है। होमवर्क इज गिवन, define network, why do we use networking? Question number 2, define different components of networking, explain client and server। ठीक है, ये सारा एक्सप्लेन किया गया है। और ऑल द वर्क शुड बी डन ऑन योर कंप्यूटर नोटबुक्स। आपने जो न्यू नोटबुक्स बाय की हैं कंप्यूटर की, ठीक है, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, आपने उस पर ये सारा काम अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।